Good evening. Fine, Mithilesh. Good evening, Mithilesh. Good evening, Vidhi. Good evening, Paki. Good evening, Vanshika. Good evening, Suyash. Fine, Vanshika. Good evening, Samya. Good evening, Apurva. Good evening, Rimjim. Good evening, Chandrani. Fine, Apurva. Good evening, Sanskriti. Fine, Sanskriti. Good evening, Swayam. Good evening, Dia. I don't know, Samya. Good evening, Gunjan. No, Paki. ऐसा क्यों लगा? Good evening, Ahi. Good evening, Ekta. Good evening, Chaitanya. Fine, Ekta. Revise किया last class का? Good evening, Tara. So now the question for you all. Restriction endonuclease used in the biotechnology. Okay, Ekta. प्रिया कॉस्मेट भी लार्ज साइज ऑफ डीएनए को कैरी करके लेके जाने के लिए कर रहे हैं ना. इंटरमीडिएट साइज हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स को जनरेट किया है ताकि हम अलग अलग डीएनए के फ्रैगमेंट के साइज को कैरी कर सकें. Restriction endonuclease used in the biotechnology. It produces sticky ends only. It link alien DNA with that of a plasmid DNA. It have been isolated from different strains of bacteriophage or viruses. It cut the two strands of the DNA at a specific points in their sugar phosphate backbone. Can I give you the poll? So please answer then. Very nice. No, not very nice. Rimjim, wrong answer. Ananya, wrong answer. Rimjim, आजकल पढ़ाई कम हो रही है ना. Wrong answer आते हैं बहुत सारे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yes, Priya, please refresh. 0. Now the poll close. The correct answer is yes. The correct answer is 4th. क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस करते हैं? नो, ब्लंट एंड ऑल्सो. लिंक एलियन डीएनए विद दैट ऑफ प्लाज्मिड डीएनए. Why Ananya? So it linked foreign DNA with that of a plasmid DNA. No restriction enzyme, it is not responsible. DNA ligase is responsible for the ligation. It have been isolated from a different strains of bacteriophage or viruses. No, it is obtained only from the prokaryote, not from eukaryote. It cut the two DNA strand at a specific point in the sugar phosphate backbone. Yes, the correct answer is this. Okay, Ananya, take care. Choose the odd one out with respect to that of location in the E. coli cloning vector. बेटा बैक्टीरियोफेज आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ना. बैक्टीरियोफेज इट इज फंक्शन टू बी एज अ वायरसेस. आप उसमें से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट नहीं करते. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जनरली आइसोलेट किस में से किए जाते हैं? फ्रॉम दैट ऑफ बैक्टीरिया. आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को एप्लीकेशन उसके ऊपर प्लांट पे भी कर सकते हो, सेल पे भी कर सकते हो. Choose the odd one out with respect to that of location in the E. coli cloning vector. Can I give you the poll? You have to find out the odd one out. I hope the correct answer from you all. Oh, so many variation. Soham, Ananya, Priya Balla, Abhilasha, Soham, Saksham. Wrong answer. Manish, right answer.
And the fastest answer given by Manish. मनीष, चैतन्य, अभिनव गुप्ता, महक, पाखी, अभिनव आप बहुत सारी क्लास से क्यों नहीं आ रहे हो? डू इट फास्ट स्टूडेंट्स. अटेंडिंग, अच्छा. 10, 9, 8, 7, 6, चैटिंग में नहीं आते होंगे ना. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Now the poll close. The correct answer is 4th. क्यों ऐसा बेटा? आप जानते हो अगर हम क्लोनिंग वेक्टर की बात करें, so PVU1 and the PST1, it encodes for that of ampicillin resistance gene. PAMH1 it is for the tetracycline resistance gene. तो दोनों के पास selectable markers present हैं. But PVU2 it is for the ROP, that is a replication of plasmid. So that is why the correct answer is 4th. If a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme that is beta-galactosidase, it would result into all except poll. दान, प्रिया, पाखी, अभी तक पोल ही नहीं दिया तो कैसे नो पोल आएगा? कैसे? अभी पोल दिया ही नहीं. डू इट फास्ट. सोहम, वैष्णवी, शिवांशु, आमिर, सुयश, पाखी, महक, गुंजन, एकावीरा, अभिलाषा, आर्यन all gave incorrect answer. Do it fast students. 10, 9, 8, 7, 6, 5. प्रिया आपका करेक्ट है. 3, 2, 1, 0. Poll close. The correct answer is third option. आप देखो क्वेश्चन में क्या है. If a recombinant DNA is inserted with the coding sequence of an enzyme that is beta-galactosidase, तो अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज पे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ऐड किया तो वो एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा. सो दिस इज द करेक्ट वन. एंजाइम इनएक्टिवेट क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पे जीन का लॉस हो गया है, दैट इज लैक्जेड जीन. और आप जानते नो लैक्जेड जीन, सो दिस मीन्स दैट नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज. एज अ रिजल्ट ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए it resulting in the formation of white colony. So fourth one it is also correct, no color. But in the third one, the blue color colony, it represent to that of non-recombinant one. And in the question they ask about you recombinant one. So the correct answer for you all is third one. प्रिया आप देखो क्लोनिंग वेक्टर के अंदर अगर हम PVU1 और PST1 की बात करें तो आप इसे सेलेक्टेबल मार्कर के साइड पर रखते हो. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के. BAMH1 it is for the tetracycline resistance. नो नहीं रखते. PPR 322 याद नहीं है. BAMH1 it is for the tetracycline resistance. So ये तीनों ही किसके लिए यूज किए जा रहे हैं? एज अ सेलेक्टेबल मार्कर रिकॉग्निशन सीक्वेंस. बट PVU2 for the replication of plasmid. So that is why it is odd one out. If the transformed bacterial cells are selected by blue and white screening, it means that the reporter enzyme in this case is easy. Ampicillin, DNA polymerase, tetracycline or beta galactosidase. I am giving you the poll. Samika, wrong answer. Do it fast student. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Poll close. The correct answer is fourth one.
आप जानते हो LAC-Z जीन इट कोड फॉर एन एंजाइम दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और आप उसे ब्लू और व्हाइट स्क्रीनिंग करते हो। सभी का डीएनए पॉलीमरेज कैसे हो सकता है? इफ द ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया सेल आर सेलेक्टेड बाय द ब्लू एंड व्हाइट स्क्रीनिंग, इट मीन्स दैट द रिपोर्टर एंजाइम इन दिस केस, जो बता रहा है कि हमारा रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सो दैट द करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन। Which of the following activity is most likely associated with alkaline phosphatase? Cutting of the DNA, preventing self-ligation of the vector, formation of phosphodiester linkage, addition of phosphate group. I am giving you the poll. Please give me the correct answer. Very nice. Abhilasha, Gunjan, there is a need revision for you. आप आंसर गलत दे रहे हो. प्रेरित, wrong answer. Do it fast, students. 10, 9. Fastest, Manish. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Poll close. The correct answer is yes, B1. अगर आपको याद है तो हमने पढ़ा था कि वेक्टर के अंदर से अगर हमने डीएनए के फ्रैगमेंट को रिमूव किया, सो वन एंड एट देयर इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अनदर इट इज अ फॉस्फेट ग्रुप। तो कहीं सेल्फ लाइगेट ना कर जाए फॉरेन डीएनए ऑफ इंसर्ट के इंसर्ट करने से पहले, तो आप फॉस्फेट ग्रुप को क्या करते हो? रिमूव करते हो, and it is done with the help of an enzyme that is alkaline phosphatase, so as to prevent the self ligation of the vector. So the correct answer is D. It's okay यशी, करेक्ट होना चाहिए, फास्ट हो या ना कोई फर्क नहीं पड़ता। So this is all about for the today's question practice. So our next topic is a process of समझाऊं प्रेरित? बेटा अल्कलाइन फॉस्फेटेस मैंने बताया था कि एक तरह का एंजाइम होता है जो रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप को। अगर आप फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दोगे तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। इफ देयर इज नो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देन इट प्रिवेंट द सेल्फ लाइगेशन ऑफ वेक्टर, कि हमने जो वेक्टर के अंदर से डीएनए फ्रैगमेंट को रिमूव करा है कहीं वो खुद से लाइगेट ना कर जाए विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट। That is why there is a need for the removal of phosphate group, and it is done with the help of an enzyme that is alkaline phosphatase. Our next topic is process of recombinant DNA technology. अभी तक हमने ये पढ़ा है कि recombinant DNA technology के अंदर हमें कौन कौन से tools की requirement है। अब हम इसे process की तरह समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या steps हैं। प्रिया, एल्कलाइन फॉस्फेटेस के बारे में हमने पढ़ा था, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ताकि वेक्टर सेल्फ लाइगेट ना कर जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर टॉपिक दैट इज प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। सो द फर्स्ट स्टेप इज द आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करोगे तभी तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करोगे। तो अब डीएनए को आइसोलेट कैसे किया जाएगा? आपके पास, आप जानते हो कि डीएनए इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड द न्यूक्लियस इट इज कंसीडर्ड टू बी एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सो फर्स्ट देयर इज अ नीड टू ओपन अप द सेल। पहले जरूरी है कि आप सेल को ओपन अप करो, एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम। So isolation of genetic material of DNA in this first opening up of cell with the help of certain enzymes. जैसे आप जानते हो कि अगर हमारा बैक्टीरिया का सेल है
हाँ बेटा, होस्ट वाला भी बच्चा है प्रिया. So first it is open up of the cell with the help of certain enzyme. Like अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, प्लांट सेल की, फंजाई सेल की and animal cell की. So bacteria cell wall, it is cleaved with the help of an enzyme and that enzyme it is lysozyme. आप उसे lysozyme से cleave करते हो. Plant cell, it is made up of cellulose. So it is cleaved with the help of an enzyme that is cellulase enzyme. Fungi cell wall, it is made up of chitin. So it is removed with the help of chitinase enzyme. And for the animal cell, we use detergent. क्योंकि आप जानते हो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल तो प्रेजेंट होता नहीं, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी पीएच को चेंज कर दोगे तो सेल अपने आप ओपन अप हो जाएगा. सो वी यूज डिटर्जेंट जिसका केमिकल नेम है दैट इज सोडियम डोडिसोल सल्फेट. The first point, it is clear to everyone that first there is a need for opening up of the cell. Yes or no? ठीक है. अब सेल ओपन अप हो चुका है तो आप जानते हो सेल के अंदर से तो बहुत सारी ऑर्गेनेलीज निकलेंगी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लेकिन हमें तो सिर्फ डीएनए चाहिए. तो हम बाकी की सारी ऑर्गेनेली को कैसे सेपरेट करेंगे बताओ, कैसे सेपरेट करेंगे बाकी की सारी ऑर्गेनेली को? सेपरेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेली फ्रॉम दैट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, नॉट बाय किलिंग. ऑर्गेनेली को कैसे किल करोगे प्रिया? विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. आप जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ईआर का, गोल्गी बॉडी का, इन सब की जो डेंसिटी है इट इज मच मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन. सो सेल ऑर्गेनेलीज आर सेपरेटेड on the basis of density gradient centrifugation. बेटा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम लोगों ने इसे सेपरेट कर लिया. आप जानते हो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल. Chromatin material means DNA being the negatively charged, it bind to the positively charged protein that is called as histone protein. Apart from that, आप जानते हो न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन भी होता है. न्यूक्लियस it itself contain a dark color body that is called as nucleolus that is responsible for the ribosomal RNA synthesis. तो RNA, DNA wrapped with histone protein, it all present inside the nucleus. तो अब आपके पास क्या बच गया है? डीएनए बच गया है, आरएनए है एंड अलोंग विद हिस्टोन प्रोटीन. दिस पॉइंट इट इज क्लियर टू एवरीवन कि हमने बाकी सब चीजों को रिमूव कर दिया है. हमारे पास बच गया डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन. आरएनए इट इज रिमूव्ड with the help of an enzyme that is RNase enzyme. So RNA it is removed with the help of RNase enzyme. Histone protein, RNase enzyme को और क्या कहा जाता है? That is called as ribonuclease enzyme. And the histone protein it is removed with the help of protease enzyme. यस प्रिया, बट हम यहाँ पे ऑर्गेनेली को सेपरेट कर रहे हैं और हमने ये डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन को इसलिए रखा है क्योंकि सारे एक साथ है ना इनसाइड दैट ऑफ अ न्यूक्लियस. बाकी सारी ऑर्गेनेली के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का मॉलिक्यूलर वेट डेंसिटी सबसे कम होती है. सो दैट इज व्हाई इट इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर ऑर्गेनेलीज. My voice is not clear to you? Voice is not clear? Clear? So once you completed, please write done in the chat box. Done? बेटा अभी जो हमारे पास डीएनए हमने आइसोलेट करना है क्योंकि हमने आरएनए को सेपरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ आरएनएज एंजाइम. प्रोटीन इट इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएज एंजाइम. तो अब मुझे डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट भी तो करना होगा ना.
डीएनए को रिमूव आउट भी करना होगा सारे के सारे फ्रैगमेंट्स में से. सो देन वी ऐड चिल्ड इथेनॉल. चिल्ड इथेनॉल का मेन काम होता है डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट करना. सो नाउ द नेक्स्ट, डीएनए precipitate out by the addition of chilled ethanol. और फिर जब हमारा डीएनए का फ्रैगमेंट बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, तब आप यहाँ पे देख रहे हो डायग्राम के अंदर आप उसे रिमूव कर रहे हो, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्पूलिंग. सो स्पूलिंग रेफर्स टू दैट ऑफ रिमूवल ऑफ separated out DNA is called spooling. So this is how isolation of DNA occur. यहाँ तक clear है? Why the DNA separate out? बेटा चिल्ड इथेनॉल क्या करेगा, हमने बाकी की सारी चीजों के तो फ्रैगमेंट्स कर दिए. चिल्ड इथेनॉल इट इज फंक्शन टू बी एज अ प्रेसिपिटेटर. तो प्रेसिपिटेटर क्या करता है, भारी चीज सुपरनेटेड और डेंसिटी क्रिएट करता है ना. सो चिल्ड इथेनॉल इट इज फंक्शन टू बी क्रिएट डेंसिटी इन द सॉल्यूशन. एज अ रिजल्ट डीएनए प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा फ्रॉम द अदर डेबरीज. एज अ रिजल्ट आप डीएनए को रिमूव करोगे, एंड दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज स्पूलिंग. यस सोहम, क्लियर टू एवरीवन? ये सब स्टेप्स किसके हैं, सब ये सारे स्टेप्स हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए के. आपका सबसे पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए ना. सो हाउ वी आइसोलेट द डीएनए. गुड रिमझिम. यस आस्था. How the soap or the sanitizer works on killing the germs. आस्था आप ये क्वेश्चन फॉरम पे पूछोगे. एक्चुअली में क्या होता है, जो कैप्सिड की फॉर्मेशन होती है ना, वो फॉर्मेशन नहीं करने देते. आप ये फॉरम पे पूछना, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप 1 है. आफ्टर दैट ऑफ स्टेप 1 द नेक्स्ट इज अ स्टेप 2. आप जानते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आपको जो आपने डीएनए को आइसोलेट किया है, अभी आपको उसको क्या करना होगा, सब्जेक्टेड करना होगा विद दैट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. नो बेटा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रिया. with what they instrument they are collecting the DNA. बेटा एक पिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पिंचर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम उसे आइसोलेट करते हैं. बाकी ऐसा कोई पर्टिकुलरली इंस्ट्रूमेंट नहीं है. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए अब आपको कोई स्मॉल जीन ऑफ इंटरेस्ट के फ्रैगमेंट की रिक्वायरमेंट है. तो आपको पहले पूरे डीएनए को, बेटा लिक्विड सेंट्रीफ्यूगेशन सॉल्यूशन है प्रिया, ताकि हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर करके जो हमने सेपरेट किया है, जैसे आपने ग्रिफिथ के अंदर एक्सपेरिमेंट में सीजियम क्लोराइड आपने पढ़ा है ना. सो सेंट्रीफ्यूगेशन सॉल्यूशन इज दिस. So after that of isolation of a DNA, then there is a need for subjecting of DNA with that of restriction enzyme, ताकि DNA को आप कट कर सको. As a result, different type of DNA fragments are produced. So now the DNA is subjected to restriction enzyme as a result various DNA fragments are produced. So this is the second step of recombinant DNA technology. So here it is a DNA fragment that is subjected to restriction enzyme. As a result, different DNA fragments are produced. अब बेटा इस डीएनए फ्रैगमेंट्स के अंदर जो हमारा डिजायर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हमें आइसोलेट करना है, उसे हम सेपरेट करना है. और आप उसे सेपरेट और आइसोलेट कैसे करते हो, विद द हेल्प ऑफ अ टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो स्टेप 3, सेपरेशन and isolation बेटा समिका हमें वैसे तो डीएनए के स्ट्रैंड्स पूरी अच्छी तरीके से दिखाई देते हैं, थोड़ा सा लिटिल बिट जूम है, बट वी आर एबल टू सी दीज टाइप ऑफ अ डीएनए थ्रेड्स. सो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ, यस प्रिया,
So separation and isolation of desired DNA fragment by the process of aerogel electrophoresis. Till here it is completed. यहां तक हो गया. अभी बताऊंगी प्रिया. अभी मैंने आपको सिर्फ टेक्निक बताया है कि एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू आप सेपरेट करते हो. सो हियर द टर्म इट इज एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रोजेल? एग्रोज आपने सुना होगा एक तरह की अगर अगर. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल सीवीड्स. सो इंट्रोडक्शन. एग्रोजेल, it's a nice chapter na. So agarose gel is obtained naturally from seaweeds. In fact छोटा भी है बहुत. So agarose gel it is obtained naturally from the seaweeds. अगर हम डिटेलिंग में बात करें तो आप जानते हो कि अगर is obtained from, agar कहां से obtained किया जाता है? agar it is obtained from algae. agar it is obtained from algae, that is Gelidium and Gricillaria. Absolutely correct Abhinav, that is Gelidium and Gricillaria. आप उसमें से obtained करते हो. Now here it is agarose gel electrophoresis. This means that you know that agarose gel electrophoresis, it is used to separate DNA fragment under the application of electric field. तभी आप उसे क्या कह रहे हो? agarose gel electrophoresis. So what is the principle of agarose gel electrophoresis? To separate DNA fragment based on their size under the application of electric field. So that is called as agarose gel electrophoresis. Principle it is clear to everyone कि हमें DNA के fragment को separate करना on the basis of size under the application of electric field. तभी आप कह रहे हो agarose gel electrophoresis. Now what is the procedure of agarose gel electrophoresis? ध्यान से समझिएगा बेटा. अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले मुझे जेल की फॉर्मेशन करनी होगी. तो मैं पहले जेल बना रही हूँ. जेल किस तरीके से बनाई जाएगी? आप जानते हो कि अगर जेल लिक्विड की फॉर्म में तब तो आप उसे पोर करके बना सकते हो, लेकिन अगर वो सॉलिड फॉर्म में तब तो नहीं सेटअप किया जा सकता. सो फर्स्ट हम लोग अगार की जेल लेंगे एंड कीप इट इन अ अवन. अगार लोगे, अगार एंड बेटा ये दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज है. एग्रोज वर्ड कहा जा रहा है. So procedure that first we have to take agar gel लोगे and keep it in an oven for 10 to 15 minutes तक आप उसे oven के अंदर रखोगे ताकि हमारे पास क्या फॉर्म हो जाए? लिक्विड अगार बन जाए. So the first agar gel लिया, keep it in an oven for that of 10 to 15 minutes. Now our next step, pour लिक्विड अगार. पोर करोगे लिक्विड अगार को इन ग्लास टब. ग्लास टब जो लैब में आप यूज करते हो उसके अंदर आपने पोर कर दिया लिक्विड अगार को along with ETBR डाई. साथ साथ और क्या डालोगे? हाँ, एट रूम टेम्परेचर रिया नाउ. along with ETBR. ETBR refers to that of ethidium bromide. आपने इस लिक्विड अगार के अंदर साथ साथ और क्या डाला? ETBR, that is ethidium bromide, that is function to be as
विजुअलाइजिंग डाई, जिसका मेन फंक्शन क्या है, विजुअलाइजिंग डाई, मतलब जब आपके डीएनए के फ्रैगमेंट सेपरेट होंगे तो आप उसको देख कैसे पाओगे, विद द हेल्प ऑफ इथिडियम ब्रोमाइन. व्हाई इट इज कॉल्ड एज विजुअलाइजिंग डाई? बिकॉज इट फंक्शन एज इंटरकैलेटिंग डाई. इंटरकैलेटिंग डाई सुना है ना, केमिस्ट्री में सुना होगा, इंटरकैलेटिंग एजेंट, चिलिएटिंग एजेंट. सो इंटरकैलेटिंग डाई दैट जॉइन विथ डीएनए फ्रैगमेंट, क्योंकि ये डीएनए फ्रैगमेंट के साथ जाकर ज्वाइन कर जाता है. सो दैट इज व्हाई इट इज फंक्शन टू बी एज अ विजुअलाइजिंग डाई. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बेटा इंटरकैलेट का मतलब होता है जो ज्वाइन कर जाएगा, मतलब ये डाई जाकर डीएनए फ्रैगमेंट के साथ ज्वाइन कर जाएगी. इसी वजह से हम डीएनए फ्रैगमेंट को विजुअलाइज कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डाई. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज विजुअलाइजिंग डाई. क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट. वंशिका, हमने जेल के अंदर पोर किया लिक्विड अगार को ग्लास टब के अंदर और साथ साथ ईटीबीआर डाला, दैट इज इथिडियम ब्रोमाइड, जो कि फंक्शन करता है एज अ विजुअलाइजिंग डाई. मतलब आप इसकी मदद से डीएनए के सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स को विजुअलाइज कर पाओगे. व्हाई इट इज फंक्शन टू बी एज अ विजुअलाइजिंग डाई? बिकॉज इट फंक्शन एज अ इंटरकैलेटिंग डाई दैट जॉइन विद डीएनए फ्रैगमेंट, क्योंकि डीएनए फ्रैगमेंट के साथ जाके ज्वाइन कर लेता है. एज अ रिजल्ट नाउ इट स्टार्ट टू प्रोड्यूस कलर एंड वी आर एबल टू सी द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट. नाउ द थर्ड, मुदित बाद में उसके बारे में, अभी मैंने वो वाला पॉइंट नहीं कराया. प्रिया नहीं, अभी जब हमने पोर कर दिया तो अब तो हमारे पास जेल सेट हो गई ना, लिक्विड अगार डालने के बाद आफ्टर लिटिल बिट सम टाइम नाउ देयर इज अ सेटिंग अप ऑफ अगार जेल. जेल फॉर्म में बन गया फिर से लिक्विड, नाउ सेटल अप. सो नाउ दिस इज अ ग्लास टप अगेन, जिसके अंदर हमारे पास अगार की जेल सेटअप हो चुकी है. एंड देन नाउ क्रिएट कॉम्स एयर. अब इसके अंदर यहाँ पे क्या करोगे आप, वेल्स को क्रिएट करोगे. सो वेल्स, बेटा आप क्या करोगे, अग्रोज की जेल लोगे, अगर आप उसके अंदर अपनी फिंगर डालोगे तो वहां पे एक शेप बन जाएगी ना, फिंगर की शेप बन जाएगी. तो यहाँ पे इस अपैरेटस के अंदर, इस एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अपैरेटस के अंदर एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर आता है. जब आप उसे एग्रोज जेल के अंदर इंसर्ट करते हो तो वेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है. सो वेल्स आर फॉर्म्ड by inserting combs in agarose gel. This point it is clear to everyone? Wells को हमने क्रिएट कर लिया by applying, by inserting comb in an agarose gel. इसके बाद वेल्स को क्रिएट करने के बाद मुझे एक बात बताओ प्रिया, मुझे इस जेल को इसे टब में डालना है, तो मैं क्या जेली फॉर्म में उसको टब में डाल सकती हूँ? तो पहले मुझे उसे लिक्विड करना होगा ना, तभी तो मैं पोर करूंगी, इसलिए लिक्विड किया पहले. देन इट इज अप्लाई टू दैट. नाउ द नेक्स्ट इज, आपने वेल्स की फॉर्मेशन कर ली थी. अब इस वेल्स के अंदर हमने क्या करना है, डीएनए के सैंपल को लोड करना है. सो नाउ द डीएनए सैंपल इज लोडेड. जो अभी आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया था वही डीएनए फ्रैगमेंट्स को आप लोड करोगे वेल्स के अंदर. सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डीएनए फ्रैगमेंट्स अलोंग विद, इसके साथ एक और डाई भी डाली जाती है, अलोंग विद ब्रोमोफिनॉल ब्लू. ये आपके पैकेज में और आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ ब्रोमोफिनॉल ब्लू, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर बन सके. सो डीएनए फ्रैगमेंट अलोंग विद, yes Priya, DNA fragments along with bromophenol blue are poured into the wells. Wait Prerit, डीएनए फ्रैगमेंट्स को along with that of a bromophenol blue are poured into the wells. आप उसको wells के अंदर डालोगे. So why the bromophenol blue is to be added? Bromophenol blue, it is function as tracking dye.
ये किसकी तरह फंक्शन करता है? एज अ ट्रैकिंग डाई। जैसे अभी आप देखोगे कि आपका डीएनए का फ्रैगमेंट रन कर रहा है, ध्यान से सुनिए। अभी आप जानते हो आपका डीएनए का सैंपल वेल्स के अंदर है, थोड़ी देर के बाद डीएनए का सैंपल रन करने लगेगा। तो डीएनए का सैंपल रन करेगा तो आपको पता कैसे लगेगा कि सैंपल रन कर चुके हैं? अब हमें इस प्रोसेस को स्टॉप करना है। नॉर्मली आपकी जेल व्हाइट कलर की है, तो धीरे धीरे व्हाइट कलर जब ब्लू कलर में बदलने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डीएनए के फ्रैगमेंट रन कर रहे हैं। कहां तक रन कर चुके हैं? अगर ब्लू कलर यहां तक हो गया तो इसका मतलब डीएनए का सैंपल रन हो चुका है एट द एंड ऑफ द जेल। तो आप स्विच ऑफ कर दोगे इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, तभी ब्रोमोफिनॉल ब्लू यूज कर रहे हैं। दैट इज फंक्शन टू बी एज अ ट्रैकिंग डाई सो एज टू एनालाइज द प्रोग्रेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। सो हम रन करेंगे ना, मतलब जेल के अंदर मूव करेंगे, डीएनए फ्रैगमेंट्स मूव हो रहे हैं। प्रोग्रेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। टिल हियर इट इज क्लियर टू एवरीवन? यहां तक क्लियर है? ब्रोमोफिनॉल ब्लू बाद में डालेंगे along with that of a DNA sample। समय का यहाँ पे एनिमेशन नहीं हो पाएगा इसमें। सो अभी आपने क्या किया, यहाँ पे डीएनए के सैंपल को रन किया along with that of a ब्रोमोफिनॉल ब्लू। रन करने के बाद आप जानते हो एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, मतलब अगर आपको डीएनए के फ्रैगमेंट को सेपरेट करना है तो आप सेपरेट कैसे करोगे? अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? डीएनए कैरीज विच चार्ज? डीएनए कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो वेल्स की तरफ कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? दैट इज नेगेटिव बिकॉज द डीएनए सैंपल इट इज लोडेड इन द वेल्स। So well side of the agarose gel, it is connected towards cathode, and the negative charge, DNA being the negatively charged, it move toward the positively charged electrode, that is called as anode। तो आप next side पर क्या लगाओगे? Anode लगाओगे। Clear to everyone? प्रिया मैं राइट कर रही हूँ पॉइंट, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। डीएनए बीइंग द नेगेटिवली चार्ज्ड, डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। सो डीएनए बीइंग द नेगेटिवली चार्ज मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, thus the gel near to wells that is loaded with DNA connect to कैथोड, जो कि एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। एंड अदर एंड ऑफ द जेल, बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक पूरा अपैरेटस है। जो मुझे ये ग्लास का टब मिला है वो भी इस एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस के अपैरेटस का मिला है। अब उसके साथ वायर्स अटैच है, तो उसमें से एक वायर बैटरी के अंदर नेगेटिव वाले चार्ज की तरफ आ रही है और एक पॉजिटिव वाले चार्ज की तरफ आ रही है। तो जहां पे वेल्स आपने बनाई है वो वेल्स वाले साइड को किससे कनेक्ट करोगे? कैथोड से, दूसरे वाले एंड को एनोड से, एंड द अदर एंड टू positively charged electrode called anode। So is it clear to everyone? यहां तक क्लियर है? So once you completed, please write done। अदर एंड ऑफ जेल ना, जो भी हमारा जेल का ग्लास टब है, ग्लास टब को मेनली हम कनेक्ट करते हैं, दैट कंटेन जेल। नाउ
DNA being the negatively charged, it move toward the positively charged electrode. As a result, DNA fragments get separated. DNA के जो fragments होंगे वो क्या हो जाएंगे? Separate हो जाएंगे. अब हमें कब पता चलेगा कि हमारा डीएनए के फ्रैगमेंट सेपरेट हो गए? मैंने अभी आपको बताया था ब्रोमोफिनॉल ब्लू, इट इज फंक्शन टू बी एज अ ट्रैकिंग डाई. जब ब्रोमोफिनॉल यहाँ बॉटम तक पहुंच जाएगा, ब्लू कलर की हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि डीएनए के फ्रैगमेंट सेपरेट हो चुके हैं. एंड नाउ वी स्विच ऑफ द एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को आप रोक दोगे. सो नाउ द डीएनए बीइंग now the sixth point, DNA being negatively charged, move toward positively charged electrode. In the presence of electric field. And as a result, DNA fragments separate. Clear to everyone? यहाँ तक clear है? Yes. अब आपके पास जो डीएनए के फ्रैगमेंट सेपरेट हुए हैं, क्या आप उसे नेकेड आई से देख पाओगे? नो, वी आर नॉट एबल टू सी फ्रॉम अंडर द विजिबल लाइट. तभी अब क्या करा जाएगा कि ये जो भी डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं, आप उसे विजुअलाइज करोगे अंडर दी सेपरेट किससे हुए? अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना आस्था, साइज के बिहाफ पे. अभी समझाते हो कि कैसे सेपरेट हुए. सो जब डीएनए के फ्रैगमेंट सेपरेट हुए तो अब आपको विजुअलाइज करना है अंडर टू दैट ऑफ यूवी लाइट. तो आप क्या देखोगे? ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं. मेरे पास ऑरेंज तो नहीं है, बट मान लो ये ऑरेंज ही है. सो ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स आर प्रोड्यूस्ड. इट इज प्रोड्यूस, इट इज विजुअलाइज अंडर द यूवी लाइट. अभी बताती हूँ बाकी क्यों सेपरेट कर रहे हैं. आपको याद है हमने पढ़ा था कि प्लाज्मिड, आपका होमवर्क भी यही था कि प्लाज्मिड इट कैरी द डिजायर्ड डीएनए ऑफ फ्रैगमेंट दैट इज 5 kb, बैक्टीरियोफाज दैट इज 23 kb, 250 के, 350 के, 2500 के, 1000 kb के. तो आप चलेगा कि डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट का साइज क्या है. तो आपको सेपरेट होगा ना कि आपको 2 kb का डीएनए फ्रैगमेंट चाहिए या 5 kb का. सो सेपरेशन किया गया है साइज के भी यहाँ पे, ताकि आप क्लोनिंग वेक्टर के अंदर अपने डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर सको. सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ एग्रोजल इलेक्ट्रोफोरेसिस. क्लियर? सो बेटा अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? विजुअलाइज करेंगे सेपरेटेड डीएनए के फ्रैगमेंट को अंडर यूवी लाइट. प्रिया, एक हमारे पास अपैरेटस होता है, उसके नीचे से यूवी लाइट चल रही होती है, तो ये जेल उसके ऊपर जाकर रख देते हैं. एज अ रिजल्ट ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स आर प्रोड्यूस. नो, इट इज नॉट प्रेजेंट इन माइक्रोस्कोप. देयर इज एन अनदर अपैरेटस. सो विजुअलाइज द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट under the UV light. As a result, bright orange color bands are produced. किसकी वजह से ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई दे रहे हैं? ड्यू टू दी विजुअलाइजिंग डायना ETBr, इथीडियम ब्रोमाइड की वजह से, जो कि चिलिएट हो गए थे डीएनए के फ्रैगमेंट के साथ. अभी आंसर मिल गया समय का. ये ऑरेंज कलर किसकी वजह से? ड्यू टू दैट अ विजुअलाइजिंग डाई दैट इज ETBr, जो ऐड किया गया है डीएनए के साथ, दैट गेट कनेक्टेड विद दैट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट. क्लियर? अभी बताती हूँ बच्चे, पहले एक बार ये प्रोसेस समझ लो पूरा. क्लियर टू एवरीवन टिल हियर? यहां तक क्लियर है? चलो एक बार देखो. एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस
उसी का ही होता है प्रिया. Agrogel electrophoresis in this DNA fragment are separated on the basis of their size under the application of electric field. आपने सबसे पहले प्रोसीजर के अंदर एगार की जेल ली, कीप इट इन अ ओवन फॉर 10 to 15 मिनट्स. लेटर ऑन आप पोर कर दोगे लिक्विड अगार को ग्लास टब के अंदर. Along with this you have to add ETBR that is function to be as a visualizing dye जो कि चिलिएट कर जाता है, इंटरकैलेट कर जाता है, ज्वाइन कर जाता है डीएनए के फ्रैगमेंट के साथ. सो सेकेंड पॉइंट इट इज क्लियर टू एवरीवन. सेकेंड पॉइंट तक क्लियर है. उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि उस जेल के अंदर कॉम्ब के एप्लीकेशन से वेल्स को क्रिएट किया था, क्योंकि वेल्स के अंदर ही आपको डीएनए के सैंपल को लोड करना है. सो फोर्थ वन इज अबाउट द लोडिंग ऑफ डीएनए सैंपल. along with that a ब्रोमोफिनॉल ब्लू. आप जानते हो ब्रोमोफिनॉल ब्लू इट इज फंक्शन टू बी एज अ ट्रैकिंग डाई जो हमें बताएगा कि हमारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स रन कर चुके हैं या नहीं रन किए हैं. आफ्टर दैट ऑफ एनालाइजिंग कि हमारे डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट हो गए हैं, आप क्या करोगे, स्विच ऑफ कर दोगे इलेक्ट्रोफोरेसिस को. एंड नाउ डीएनए बीइंग द नेगेटिवली चार्ज इट मूव टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज. This gel it is near to that of a well that is loaded with the DNA connected to that of a cathode. जो वेल्स वाली साइड है वहां पे कैथोड है और उसके अपोजिट वाली साइड क्या है, एनोड है. लेटर ऑन रन करके और फिर आप उसे विजुअलाइज कर रहे हो अंडर टू दैट ऑफ अ यूवी लाइट. क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सभी को? विधि बहुत इजी है. ईटीबीआर कब डाला था? ईटीबीआर मैंने आपको बोला इट इज फंक्शन टू बी एज अ विजुअलाइजिंग डाई. तो इसका मेन काम क्या होगा, विजन प्रोवाइड करना. मतलब जो डीएनए फ्रैगमेंट के साथ ज्वाइन करेगा और हमें बताएगा कि हमारे सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कहाँ कहाँ पे. इट प्रोड्यूसेस ऑरेंज कलर बैंड. सो ईटीबीआर इट इज फंक्शन टू बी एज अ विजुअलाइजिंग डाई. एंड द ब्रोमोफिनॉल ब्लू इट इज फंक्शन टू बी एज अ ट्रैकिंग डाई. ट्रैकिंग बता रहा है, ट्रैक बता रहा है कि डीएनए फ्रैगमेंट्स रन किए भी हैं या डीएनए फ्रैगमेंट्स रन नहीं किए हैं. हमारी जेल ब्लू कलर की हो गई तो ट्रैक हो गया. नो प्रिया, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है इसीलिए आप उसे कैथोड के साथ कनेक्ट कर रहे हो. एंड डीएनए बीइंग द नेगेटिवली चार्ज इट मूव टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, तो वो एनोड की तरफ मूव करेंगे. टिल हियर इट इज क्लियर टू एवरीवन? नहीं पाखी आप समझ नहीं रहे हो. ब्रोमोफिनॉल ब्लू इट इज ओनली फंक्शन टू बी एज अ ट्रैकिंग डाई. आपने क्रोमैटोग्राफी की है कभी? की है कभी क्रोमैटोग्राफी? उसके अंदर जो पेज होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है. आप जो भी पिगमेंट्स को रन करवाते हो उससे वो कलर उसका चेंज हो जाता है प्रैक्टिकल के अंदर. तो क्या उसमें आपको पिगमेंट्स भी दिखाई दे रहे होते हैं कि कौन कौन सा पिगमेंट हो रहा है? वो तो सिर्फ पेज को कलर करता है ना, आपको पता चलता है कि आपकी क्रोमैटोग्राफी रन हो चुकी है. तो ब्रोमोफिनॉल ब्लू इट इज ओनली फंक्शन टू बी एज अ ट्रैकिंग डाई. वो सिर्फ रास्ता बता रहा है कि मेरी जेल के अंदर जो सैंपल है वो रन कर चुका है. अब मुझे इलेक्ट्रिसिटी के स्विच ऑफ करना है. अब मेरा सारा का सारा सैंपल रन हो चुका है. वो डीएनए के फ्रैगमेंट्स को नहीं दिखा रहा. डीएनए फ्रैगमेंट इट इज ओनली विजुअलाइज अंडर द ईटीबीआर. और ईटीबीआर को भी आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, विजिबल लाइट में नहीं दिखते डीएनए के फ्रैगमेंट. इट इज ओनली विजुअलाइज अंडर द यूवी लाइट, इसीलिए यूवी लाइट में रखा जा रहा है. क्लियर टू एवरीवन नाउ? अभी क्लियर है? प्रिया अभी मैं बताऊंगी, अभी मैंने वो बताया नहीं है. बेटा विजुअलाइज करोगे सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट को अंडर द यूवी लाइट. जो भी डीएनए के फ्रैगमेंट सेपरेट हो चुके हैं आप उसे यूवी लाइट के नीचे देखोगे. एज अ रिजल्ट ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दैट अ विजुअलाइजिंग डाई दैट इज ईटीबीआर. नो सेम होगा मुदित. ईटीबीआर डाई अपना कलर थोड़ी चेंज करेगी, वो तो सेम ही रहेगा.
सो नाउ व्हाट इज एन ऑब्जर्वेशन? आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? सो अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो बेटा जो भी डीएनए का फ्रैगमेंट स्मॉल साइज का होगा वो वेल्स के क्लोजर होगा या फार्दर अवे होगा? द स्मॉलर द डीएनए फ्रैगमेंट, it move farther or it is towards the well? It moves farther. So smaller the DNA fragment, farther it move. प्रिया मैंने बस इतना बताया कि जितना डीएनए का फ्रैगमेंट छोटा होगा उतना वो दूर तक जाएगा, क्योंकि आप जानते हो एगरोज जो है वो अगार है। अगार मतलब जिसके अंदर जेल की फॉर्म में है, जो कि पोर्स प्रेजेंट है। वो सिर्फ स्मॉल साइज फ्रैगमेंट ही मूव कर सकते हैं, लार्ज साइज फ्रैगमेंट मूव नहीं कर पाएंगे। तो जितना छोटा फ्रैगमेंट उतना वो दूर जाएगा, और जितना बड़ा फ्रैगमेंट वो वेल्स की तरफ रहेगा। सो स्मॉलर द डीएनए फ्रैगमेंट, फार्दर इट मूव। लार्जर द डीएनए फ्रैगमेंट, more near to the wells. Clear to everyone? It is based on the किसी का भी कर सकते हैं समय का। आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला टॉपिक नहीं किया है बॉटनी के अंदर? उसमें नहीं किया था आपने एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? तो वो तो किसी में भी कर सकते हैं आप, सेपरेट डीएनए के फ्रैगमेंट को। सो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नहीं स्मॉल डीएनए का फ्रैगमेंट समय का। आप जब डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर रहे हो तो कई बार 2 kb का फ्रैगमेंट बनेगा, कई बार 10 kb का फ्रैगमेंट बनेगा, कई बार 200 kb का फ्रैगमेंट बनेगा। तो जितना छोटा साइज का फ्रैगमेंट है वो उतना दूर जाएगा, एंड द लार्जर द डीएनए फ्रैगमेंट मोर इट टुवर्ड्स द वेल। सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीविंग। सीविंग समझते हो ना? जैसे हम विनोइंग करते हैं तो छोटे छोटे पोर्स में से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स तो पास कर जाते हैं, लेकिन लार्जर मॉलिक्यूल्स रिटेन्ड रह जाते हैं। So it is based on the principle of sieving. Clear to everyone? Observation clear है? Done? Done? Now look after this diagram that is given in your NCERT. बेटा यहाँ पे wells दे रखे हैं, प्रिया मैंने आप भी बताया था कि डीएनए का कलर नहीं है, ये ईटीबीआर का कलर है, इथीडियम ब्रोमाइड की वजह से कलर है। तो इथीडियम ब्रोमाइड तो सेम ही रहेगा ना? बताऊंगी अंशिका। बेटा अब सीविंग, प्रिंसिपल ऑफ सीविंग पे ये कैसे डिपेंड करता है? सीविंग समझते हो? इंग्लिश का वर्ड है सीविंग, जिसमें छानना जिसे कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सीविंग। सो स्मॉलर द फ्रैगमेंट वो क्रॉस कर जाएगा। So it is based upon the principle of sieving, filtration. So this is a diagram of agrogel electrophoresis that is given in your NCERT. जहाँ पे आप देख रहे हो वेल्स हैं, जहाँ पे आप डीएनए के सैंपल को लोड करते हो। आप जानते हो डीएनए बीइंग द नेगेटिवली चार्ज, वेल्स इट इज कनेक्टेड टू दैट ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और इसके अपोजिट में पॉजिटिवली चार्ज है। लेंस के अंदर आप लोड करते हो डीएनए के सैंपल को along with bromophenol blue. Bromophenol blue, it is functioned to be as a tracking dye, and here it contain agar gel, and along with that of ETBR, that is ethidium bromide, that is functioned to be as a visualizing dye, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर के बैंड्स अपीयर हो रहे हैं। वेट करो प्रिया, मैं भी समझा रही हूँ ना। So if I visualize into this diagram, अगर हम इस विजुलाइज करेंगे इस डायग्राम के अंदर, तो आप देख रहे हो कि लार्जेस्ट साइज जो फ्रैगमेंट है इट इज टूवर्ड्स द वेल, और स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट इट इज टूवर्ड्स एट द अनदर एंड। तो जितना बड़ा फ्रैगमेंट होगा वो कहाँ पर आएगा? वेल्स की तरफ।
Smaller the fragment, it farther it moves. So this diagram, it wants to tell you that the agarose gel electrophoresis, it is used to separate DNA fragment on the basis of size. Largest the fragment, it is more towards the well. Smaller the fragment, it move away from the well. ये first point clear है सभी को कि largest fragment wells की तरफ होगा और smallest fragment away होगा. इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 lanes हैं, 1, 2, 3, 4. इनमें से कौन सी लेन के अंदर डीएनए डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? इन विच लेन द डीएनए इट इज नॉट डाइजेस्टेड? द लेन 1 is contain not digested DNA, or we can say that undigested DNA, it is present in the lane 1. जबकि लेन 2, 3 और 4 के अंदर digested DNA है. Digested DNA means DNA it is subjected to restriction enzyme. As a result, different DNA fragments are produced. Clear to everyone? Clear है? So अगर हम conclusion निकालें, so what is the conclusion here? That बेटा हमने अभी डीएनए को डाइजेस्ट करने के बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से तब agarose gel electrophoresis किया था ना. तो अगर हमारा डीएनए डाइजेस्ट नहीं हो पाया, हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐड किए बट डीएनए इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए के फ्रैगमेंट्स नहीं बने. तो अगर डीएनए के फ्रैगमेंट्स नहीं बन रहे तो वह agarose gel electrophoresis के थ्रू आगे मूव नहीं कर पाएगा. सो दिस फर्स्ट लेन इट इंडिकेट दैट कि यहाँ पे जो डीएनए है वो अनडाइजेस्टेड है, वो पूरी तरीके से फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में नहीं बन पाया. एंड बिकॉज ऑफ देयर बल्कीनेस वो लेन 1 के अंदर वेल्स की तरफ ही रह गए. बाकी 2, 3 और 4 के अंदर डीएनए अच्छी तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव हुआ है, तभी हमारे पास डिफरेंट साइज के डीएनए फ्रैगमेंट जनरेट हुए हैं, जिस वजह से वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. क्लियर? सो कंक्लूजन इज दैट agarose gel electrophoresis allow सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट. अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पे डीएनए फ्रैगमेंट का सेपरेशन किसके भी आप हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और बोथ? बेटा प्रिया वो तो शुगर और फॉस्फेट बैकबोन को ब्रेक करेगा ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और लॉन्गिट्यूडनली का मतलब ही नहीं है. ये तो डीएनए के फ्रैगमेंट्स रन किए गए हैं जेल के अंदर, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ साइज, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. चार्ज के भी आप पे तो नहीं हो रहे क्योंकि आप जानते हो डीएनए नेगेटिव चार्ज है, सारे ही डीएनए के फ्रैगमेंट्स नेगेटिव चार्ज है. सो agarose gel electrophoresis it allow the separation of DNA fragments only on the basis of size, not on the basis of charge. क्लियर टू एवरीवन? कंक्लूजन. अब अगर आपको एक डिजायर डीएनए फ्रैगमेंट आइसोलेट करना है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इफ दिस इज अ स्मॉलेस्ट वन, तो स्मॉलेस्ट वन अगर मान लो कि यहाँ पे ये 2 kb है, तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट वाला अगर मान लो तो 200 kb यहाँ पर होगा. सो इफ आई वांट टू आइसोलेट द 2 kb ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, तो आप कैसे आइसोलेट करोगे? उस पर्टिकुलर पार्ट को कट करोगे और वहां से उस फ्रैगमेंट को आइसोलेट कर लोगे. उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एज इल्यूशन कहते हैं. यस, सो दैट इज आइसोलेशन ऑफ बेटा कई बार एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली भी तो नहीं होते हैं ना प्रिया, ये सारा मैकेनिकल भी तो है. आपने ऐड किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसके अंदर कंटामिनेशन है, दे आर नॉट अलाउड टू कट द डीएनए. उस केस के अंदर वो रन नहीं करेगा agarose gel electrophoresis के अंदर. So isolation of नो महक, ब्रोमोफिनॉल ब्लू को भूल जाओ. ब्रोमोफिनॉल ब्लू आपके एनसीईआरटी, आपके पैकेज, आपके सिलेबस में नहीं है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो. बाकी ब्रोमोफिनॉल ब्लू डीएनए को कलर नहीं देता. ब्रोमोफिनॉल ब्लू सिर्फ और सिर्फ जेल को कलर दे रहा है, जैसे क्रोमैटोग्राफिक पेपर में पेपर को कलर देता है. कि आपको पता कैसे चलेगा?
आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ओपनिंग कर रखी है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, हियर इट इज अ नेगेटिव, हियर इट इज अ पॉजिटिव। आप स्विच ऑन करके रखे हो ताकि डीएनए के फ्रैगमेंट्स रन कर जाए। आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी देर के बाद ऑफ करना है, 2 मिनट्स के बाद, 20 मिनट्स के बाद, 20 आवर्स के बाद? तो उसके लिए हमने ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाला है कि मेरी जेल व्हाइट कलर की है, जब व्हाइट कलर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब डीएनए का फ्रैगमेंट रन कर चुका है बॉटम तक, अब मुझे स्विच ऑफ करना है। सो ब्रोमोफिनॉल ब्लू, इट इज फंक्शन टू बी एज अ ट्रैकिंग डाई, इट इज नॉट यूज टू कलर द डीएनए फ्रैगमेंट। डीएनए फ्रैगमेंट को कलर करने का काम सिर्फ और सिर्फ ईटीबीआर करता है। क्लियर टू एवरीवन नाउ? सो आइसोलेशन ऑफ नो प्रिया, इट इज ओनली अनडाइजेस्टेड डीएनए, ये कोई डीएनए का फ्रैगमेंट नहीं है, ये सिर्फ डीएनए का सैंपल है, पूरा सैंपल जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट नहीं किया, और अगर कट भी किया है तो प्रॉपरली नहीं हुआ है। सो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट by cutting agarose gel. This process is called elution. अपूर्वा, हमारे पास ना एक स्पेसिफिक कटर्स आर आल्सो प्रोवाइडेड दैट इज यूज्ड टू कट अ जेल सो दैट आप डिजायर डीएनए फ्रैगमेंट को आइसोलेट कर सको, सेपरेट कर सको, उसे कहते हैं इल्यूशन। क्लियर टू एवरीवन? प्रिया, इट डिपेंड्स अपॉन योर डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट ना। आप जानते हो आप वेक्टर यूज कर रहे हो, प्लाज्मिड यूज करना है तो 2 kb या 5 kb का लोगे, अगर यैक यूज कर रहे हो तो 250 पे लोगे। तो वही तो आपके जीन के ऊपर डिपेंड करेगा ना, आपका जीन जिस डीएनए के फ्रैगमेंट पे होगा वही तो डिसाइड करेगा। जैसे अगर मेरे लिए आई प्रोटीन मुझे बनाना है तो उसके अंदर कितने डीएनए के सीक्वेंस होंगे, उसी के बिहाफ पे तो डीएनए फ्रैगमेंट डिसाइड होगा, उसका साइज क्या है, एंड दैट इज व्हाई वी आर सब्जेक्टिंग टू दैट ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। बेटा यहाँ पे अभी हमने क्या किया प्रिया, पूरा तो प्रोसीजर हमने यही किया कि हम डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट कर सकें अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ साइज। आपने वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला होगा ना जिसका आपको कट करना होगा, तो वही तो छोटे छोटे पार्ट्स में कट किया होगा, और आपको पता होगा कि आपका डीएनए का सीक्वेंस क्या है, उसका साइज क्या है, आप उसे निकाल लोगे, आइसोलेट कर लोगे। यस अपूर्वा? कर सकते हैं मुझे, बट बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा फिर। Clear to everyone this agrogel electrophoresis? So now the question for you all. The given figure is a schematic of linear double-stranded DNA containing the indicated restriction site. Which of the following depict the expected result? Wait for a second. Please read the question. Please don't answer here, Muskan. I will give you the poll. Done? Sankriniti, Hafsa, Divyanshi, Murchna, Ekavira, Chaitanya, wrong answer. प्रिया, हमारे पास ना एक लैडर डीएनए होता है,
जिसके अंदर ना हमारे पास जैसे पीएच का एक स्केल होता है ना, उसी तरीके से इसके अंदर हमारे पास एक लैडर डीएनए भी होता है, ताकि आप लोग डिटरमाइन कर सको कि ये 2 kb का या 2.5 kb का है। इन द एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक लैडर दिया गया होता है। नो पाखी, सो डू इट फास्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। Poll close. The correct answer is third. बेटा पहले तो यहाँ पे डीएनए को हमने कट किया विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज EcoR1। हमारे पास 2 kb का, 5 kb का, 1 kb का। So, हमारे पास अलग अलग डीएनए के फ्रैगमेंट्स अराइज हुए हैं। आप जानते हो स्मॉलर द फ्रैगमेंट मोर फार्दर इट मूव। सो यहाँ पे 1 kb बाद में आएगा, वैसे तो यहाँ पे भी 1 kb बाद में, 2 kb बाद में या 5 kb पहले टूवर्ड्स द वेल। लेकिन आप जानते हो डीएनए बीइंग द नेगेटिवली चार्ज इट मूव टूवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर कैथोड की तरफ क्या होंगी, वेल्स होंगी, और उसके अपोजिट हमारे पास रनिंग हो रही होगी। सो वेल्स के करीब कौन सा होगा, 5 kb, और toward the other end of anode it is 1 kb. So the correct answer is third one, क्योंकि एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ओनली। क्लियर टू एवरीवन? ऑफ कोर्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सिर्फ 5th और 1st ही kb है। 2 kb का डीएनए का फ्रैगमेंट कहाँ है? So now the next thing, after that, हाँ डीएनए फ्रैगमेंट तो बनना चाहिए ना, सेपरेशन तो सभी का होगा। आपने यहाँ पे डिजायर जीन को, फ्रैगमेंट को आइसोलेट कर लिया है। अगर मुझे चाहिए 2 kb वाला डीएनए का फ्रैगमेंट, वो आपने आइसोलेट कर लिया है। अब आइसोलेट करने के बाद आप उसे एम्प्लीफिकेशन भी करोगे। सो एम्प्लीफिकेशन इट इज डन विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो द नेक्स्ट इज amplification of desired DNA fragment by using PCR. PCR full form is polymerase chain reaction. सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया, हाँ फोर्थ वन। सो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट बाय यूजिंग पीसीआर। yes, PCR absolutely correct ahi. PCR was discovered by Kary Mullis. So discovered by Kary Mullis. अगर हम पीसीआर के बारे में बात करें, so PCR it involve 3 steps. Number 1 step, it is a denaturation. What is the meaning of denaturation? Yes, Priya. Denaturation के अंदर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को आप सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट कर देते हो अंडर दी हाई टेम्परेचर, सो दैट इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन। और पीसीआर के अंदर जो डीनेचुरेशन किया जाता है, इट इज डन एट 94 डिग्री सेल्सियस। फिर सिंगल स्टैंडर्ड बनने के बाद आप जानते हो कि अगर मुझे उसे दोबारा से न्यू डीएनए का फ्रैगमेंट जनरेट करना है, तो मुझे डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत है। बट डीएनए पॉलीमरेज खुद से डीएनए को सिंथेसाइज नहीं कर पाता। इट रिक्वायर द शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमर। हमेशा डीएनए का रेप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, तो प्राइमर का एडिशन भी तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा। एंड दिस स्टेप इट इज कॉल्ड एज एनीलिंग। एनीलिंग रेफर्स टू दैट ऑफ जॉइनिंग ऑफ प्राइमर, प्राइमर का जुड़ना at 5 prime to 3 prime direction, and it occurs, yes Apurva, it occurs at a temperature of 50 to 60 degree Celsius. फिर प्राइमर को आप क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, and extend it is done with the help of a polymerase enzyme.
एक्सटेंशन इट इज डन एट अ टेम्परेचर ऑफ 72 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन करने के लिए जो एंजाइम यूज किया जाएगा दैट इज टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज इट इज एन एंजाइम दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया दैट इज थर्मस एक्वाटिकस। क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे हमारा डीएनए पॉलीमरेज डीनेचर हो जाएगा, इसलिए हमने डीएनए पॉलीमरेज को, जिसे कहा जा रहा है टैक पॉलीमरेज, obtained from a bacteria that is Thermus aquaticus, that is responsible for the extension of desired DNA interest, ताकि आप एम्पलीफिकेशन कर सको एट अ वेरी लार्ज स्केल। पीसीआर के स्टेप्स क्लियर है? yes or no? So denaturation refers to conversion of double stranded DNA into single stranded। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को आप उसे किस में कन्वर्ट कर दोगे? सिंगल स्टैंडर्ड में, as it is applied to high temperature at 94 degree Celsius, resulting in ब्रेकिंग ऑफ। कौन से बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं डीएनए के अंदर जब उसे ओपन करना होता है? रिजल्टिंग इन ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होते हैं? बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस। सो दिस इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन। डन। फर्स्ट स्टेप क्लियर है प्रिया? After that of denaturation, the next step it is about the annealing. Annealing here refers to that of joining of primer. आपको अगर डीएनए की सिंथेसिस करनी है तो आपको प्राइमर को ज्वाइन करवाना होगा। सो ज्वाइनिंग ऑफ प्राइमर। So joining of primer at 5' to 3' direction is called annealing. प्राइमर का ज्वाइन कराना उसे आप एनिलिंग कहते हो। प्राइमर क्या होते हैं? शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। प्राइमर आर शॉर्ट oligonucleotide sequence that are complementary to single stranded template DNA. क्लियर है ये पॉइंट? करेक्ट आई। So that are complementary to single stranded template DNA. Annealing occurs at, annealing कितने टेम्परेचर पे हो रहा है? Annealing occurs at 50 to 60 degree Celsius. Next, after that of annealing, the third step it is an extension. Extension refers to extend the primer to form new DNA strand, ताकि आप न्यू डीएनए का स्ट्रैंड बना सको कॉम्प्लीमेंट्री टू पेरेंटल स्ट्रैंड। बेटा अनीलिंग का मतलब प्राइमर का जुड़ना है।
प्राइमर जोड़ा जाता है ताकि डीएनए को एक स्टार्टअप मिले। डीएनए पॉलीमरेज अपने आप से सिंथेसाइज नहीं कर पाता, तो एनीलिंग का मतलब सिर्फ प्राइमर का जुड़ना है। एक्सटेंशन, एक्सटेंड द प्राइमर टू फॉर्म न्यू डीएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू पेरेंटल स्ट्रैंड। इट इज डन एट 72 डिग्री सेल्सियस। Extension occurs with the help of Taq polymerase। एक्सटेंड आप कैसे करते हो बेटा? पीसीआर एक तरह की मशीन है पूर्वा। अगर इस तरीके का टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करेंगे, जैसे नॉर्मली तो हमारे अंदर डीएनए रेप्लिकेशन इट इज डन विद द हेल्प ऑफ हेलिकेस एंजाइम। हेलिकेस एंजाइम उसे डीनेचर कर देता है ना, तो पीसीआर के अंदर एक ही मशीन के अंदर सारे काम करने हैं। तो डीनेचुरेशन के लिए तो आपको सब्जेक्ट करना होगा हाई टेम्परेचर को, तो अब बाकी के स्टेप्स करने के लिए भी हमें टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। सो तभी हम लोगों ने टैग पॉलीमरेज से ऑब्टेन किया, जो कि थर्मोस्टेबल है। सो एक्सटेंशन occurs with the help of Taq polymerase obtained from bacterium Thermus aquaticus। That is highly thermostable। As a result, there is amplification of DNA fragment at the rate of 2 की पावर n। मतलब अगर आपने डीएनए का फ्रैगमेंट एक ऐड किया है तो 1 से इट गिव राइज टू दैट ऑफ 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो हमें बहुत ही कम टाइम के अंदर हम लोग बहुत सारे डीएनए फ्रैगमेंट को एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? पीसीआर बेटा एम्प्लीफिकेशन का रेट बताया गया है कि अगर हमारे पहली बार शुरुआत में डीएनए के फ्रैगमेंट 2 हैं तो वो 2 से 4 हो जाएगा, फिर 4 से 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा, फिर 64 हो जाएगा। सो 2 की पावर n के रेट से ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्लियर टू एवरीवन? सो आज हमने क्या किया? लेट्स डू अ रिविजन of the today's class। I want to only extend your class for the 5 minutes। Yes प्रिया, होता है। So हमने शुरू किया था प्रोसेस से। हाँ होता है बेटा, तभी तो मशीन है, तभी तो पढ़ा रही हूँ, गलत थोड़ी पढ़ाएंगे। It shows it virtually और actually इतना मल्टीपल होता है बेटा। So process of recombinant डीएनए टेक्नोलॉजी हमने शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले हमने समझा था कि प्रोसेस के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए करने के बाद हमने उसे सब्जेक्ट किया था विद दैट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नाउ दे विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपस डीएनए के फ्रैगमेंट सेपरेट हो गए थे, एंड नाउ इट इज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके अंदर आपने एक विजुअलाइजिंग डाई को यूज किया था, ताकि वेट, जिसके अंदर आपने विजुअलाइजिंग डाई यूज की थी, दैट इज ईटीबीआर। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि अगर हम डिजायर डीएनए फ्रैगमेंट को आइसोलेट करना चाहते हैं तो आप उस स्टेप को क्या कहते हो? दैट इज कॉल्ड एज इल्यूशन। नेक्स्ट वी हैव डन अबाउट द एम्प्लीफिकेशन। Amplification, it is done with the help of a technique that is called as PCR, developed by the scientist that is Kary Mullis. It involves 3 steps, that is denaturation, that occurs at a temperature of 94 degree Celsius. Next is about the annealing, जिसमें primers को जोड़ा जाता है, that is about the 50 to 60 degree Celsius. And the last one, it is extension, that is extended with the help of Taq polymerase at 72 degrees Celsius। So this is all about that of a PCR। 2 की पावर n ना बेटा, n से करो ना।
So this is about the amplification. In the next class, हमें next class में कहाँ से शुरू करना है? हमें next class से शुरू करेंगे, मैं आपको कराऊंगी एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर से शुरू कराऊंगी. एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर अभी बचा है. फिर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हो. होस्ट इंट्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे. स्टेप्स, बायोरिएक्टर एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. हाँ, 256. आप फोरम पे क्वेश्चन डालो प्रिया, आई विल आंसर यू. So thank you so much. Bye everyone. Okay, Paki.